Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Amanullah Khan, and I am working as lecturer in Department of Pathology, Sibas Jang, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan. I did my PhD from Berlin, Germany. Today we will discuss and we will talk about the brucellosis. What is the brucellosis? What are the different bacterial species involved in brucellosis? Uh, what are the importance of brucellosis in animal disease situation and human infection situations, and what are the conventional and modern diagnostic assays which can be used to identify to uh, diagnose brucellosis in clinical settings. So अगर हम brucellosis की बात करें तो this is a disease of older times, you can say disease from the ancient times. और जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि एक चीज जो कि है वो फाउंड की गई इजिप्ट के अंदर, और वो 3200 ईयर ओल्ड पीस ऑफ चीज था जिसको मॉलिक्यूलर एविडेंस की बेस पे उसमें ब्रूसेला को आइडेंटिफाई किया गया, जो कि एंशियंट टाइम में एक अननोन सिचुएशन थी। और at that time this disease cause fevers, headaches, muscle pain and other symptoms that can reoccur or never go away at all, because at that time people did not know what are the causative agent of this disease and how they can treat, so it was difficult at that time. And similarly, in another study, uh, Brucella melitensis genome was identified using the shotgun metagenomics technology, and it was identified from the skeleton of 14th century middle-aged person. In another study, which is also done is in Albania, and the piece of bone was used as a sample, and molecular identification revealed that these patients have been infected with brucellosis. तो अगर हम बात करें कि ब्रूसेलोसिस काज कौन करता है, तो मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं दे बिलोंग टू जीनस ब्रूसेला. ब्रूसेला बेसिकली इसको फर्स्ट जो ना वो डिस्कवर किया था सर डेविस ब्रूस ने इन 1886 फ्रॉम फीवर अननोन ओरिजिन. एंड ये फीवर जो ना वो पीपल में काफी कॉमन था, तो इसको फर्स्ट टाइम सर डेविस ब्रूस ने आइडेंटिफाई किया कि दिस कैन दे इट कैन बी अ ड्यू टू bacteria which can infect humans as well as, and after that this disease also identified in animals. So first time it was discovered by Sir David Bruce, and after that, after his name, this was called as Brucella from Bruce, and because it caused Malta fever, and from that it was called as melitensis. So the name of the whole organism was Brucella melitensis after the name of Sir David Bruce and the origin of discovery. इसमें डिफरेंट स्पीशीज हैं ब्रूसेला की, जैसे ब्रूसेला अबॉर्टस है, मेलिटेंसिस, स्विस, कैनिस, ओविस एंड निटोमी है, और कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो रिसेंटली या फ्रॉम लास्ट डेकेड एंड हाफ से डिस्कवर हुई हैं, जिसमें पिनिपेडियालिस है, सिटाई है, माइक्रोटी है, इनोपिनेटा है, पेपियोनस है और वुल्पस है. तो इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज काज करती हैं. बेसिकली इनके प्राइमरी होस्ट एनिमल हैं, but because this is a zoonotic disease and it can infect humans and it can cause severe disease in human as well. तो ब्रूसेला melitensis सबसे ज्यादा severity में disease काज करता है in humans, जो कि इसका प्राइमरी होस्ट गोट्स हैं और sheep है. इस तरह कैटल का जो है वो ब्रूसेला इन्फेक्ट करता है, ब्रूसेला अबॉर्टस, और ये भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है. तो ये एक ओवरव्यू है कि कौन कौन सी स्पीशीज हैं और इनकी कौन कौन सी बायोवार्स हैं और इनके प्राइमरी होस्ट कौन से हैं, और वो इनमें से कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करती हैं. तो ह्यूमन इन्फेक्शन में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सिवियरिटी जो ब्रूसेला melitensis की है, उसके बाद ब्रूसेला अबॉर्टस है और ब्रूसेला स्विस है, और बहुत
रेयर चांसेस हैं कि ब्रूसेला कैनस जो है ना वो डिजीज काज करे। और पर्टिकुलरली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रूसेला अबॉर्टस जो है ना वो ज्यादा डोमिनेट है, और ब्रूसेला मेलिटेंसिस भी है, बट ब्रूसेला स्विस अभी तक यहाँ पे किसी को कोई इसको आइडेंटिफाई करने के अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सका। होपफुली with the advancement in technology, and if this is present in Pakistan, then we will be able to identify it also. इस तरह ये एक ओवरव्यू है कि ये काफी सारे कंट्रीज जो हैं जो कि एंडेमिक हैं, इवन कि पाकिस्तान भी एंडेमिक है, जहाँ से ये रिपोर्ट हो चुका है, और कौन कौन सी ब्रूसेला की स्पीशीज हैं जो इन्फेक्ट करती हैं डिफरेंट हॉर्स को, जैसे कि ह्यूमन है, कैटल है, बफलो, शीप, गोट, कैमल है, डॉग है, इवन हॉर्सेस हैं, वाइल्ड बोर्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, इस तरह वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे आइबेक्स है, डियर है, और कुछ केसेस में ये फ्रॉग में भी इसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये एक वाइड वैरायटी ऑफ मैमल्स को इन्फेक्ट करता है, और इसलिए इसका कंट्रोल जो ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। although it can be controlled, but it is difficult in situations where disease is endemic like Pakistan. तो जीनस ब्रूसेला की अगर बात की जाए तो ये बैक्टीरिया बेसिकली ग्राम नेगेटिव है। इसकी जो शेप है वो कोकोबैसिलाई है, नॉन स्पोर फार्मिंग है, नॉन मोटाइल है, एरोबिक है, सम केसेस माइक्रो एरोफिलिक भी है। इसका साइज 0.6 टू 1 माइक्रोमीटर है, काफी स्मॉल साइज का बैक्टीरियम है, और ये इंट्रासेलुलर जो है ना वो सरवाइव करता है और ग्रो करता है, और जिसके वजह से ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इम्यून सिस्टम को बाईपास भी कर जाता है। तो ये क्रोनिक डिजीज पार्टिकुलरली काज करता है, और इसकी ट्रीटमेंट जो है ना काफी डिफिकल्ट होती है, ऑलमोस्ट मंथ्स लग जाते हैं इसको ट्रीट करने में, और उसमें भी चांसेस होते हैं कि ये डिजीज आफ्टर ट्रीटमेंट भी दोबारा से हो सकती है, जो कि 15% चांसेस हैं कि डिजीज आफ्टर ट्रीटमेंट जो है ना वो हो सकती है। देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर द रीकरेंस ऑफ द डिजीज, एंड दोज रीजंस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। एनिमल्स में इसकी ट्रांसमिशन पार्टिकुलरली डायरेक्ट कंटैक्ट से होती है। वो मिल्क भी हो सकता है, यूट्राइन फ्लूइड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, इवन के और भी बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं, जैसे कि रिटेन फीटल मेम्ब्रेन अगर कहीं पे है तो एनिमल उसको लीक कर लेता है, तो उससे भी हो सकता है। इनडायरेक्ट कंटैक्ट है जो कि कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट की वजह से होता है, जैसे फोमाइड्स हैं, एरोसोलिक ट्रांसमिशन भी हो जाती है इसकी। कंटेमिनेटेड वाटर है, उससे भी ये डिजीज एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर हो जाती है जब वो ड्रिंक करेगा कंटेमिनेटेड वाटर को, या कंटेमिनेटेड पास्चर्स हैं वहां से भी ये डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। ह्यूमंस में बात की जाए तो मोस्टली रॉ और अनपास्चराइज्ड मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज है, योगर्ट में भी समटाइम, लेकिन मोस्टली जो मिल्क और चीज है इनमें इनके थ्रू जो ना ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। और कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट है जैसे एरोसोल्स हैं, अगर ये डिजीज किसी जगह पे है, किसी फार्म पे है, और वहाँ पे जो फार्म वर्कर्स हैं, ओनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वेटनेरियंस हैं, जो एनिमल को कांटेक्ट करते हैं, उनमें डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। और वो पर्सन जो लेबोरेटरी के अंदर इस ऑर्गेनिज्म को हैंडल करते हैं, उनमें भी ये डिजीज काज हो सकती है। क्लिनिकल साइंस की बात की जाए तो इसमें अबार्शन होती है जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर में होती है, रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स है, फीवर है, ह्यूमन के केस में ज्यादा ये फीवर होता है, जॉइंट आर्थराइटिस काज करता है, बैक पेन होती है, जॉइंट पेन होती है, और भी हैं इसके साइंस, लेकिन ये जो मेन साइंस हैं वो यही होते हैं। और समटाइम्स जो एसिम्टोमेटिक रह जाती है ये, जैसे अगर कैमल की बात की जाए तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिजीज जो है वो साइन सिम्टम काज नहीं करती, और ऐसे एनिमल जिनमें एसिम्टोमेटिक है वो अनआइडेंटिफाइड रह जाते हैं, अंडर डायग्नोज रह जाते हैं, और ऐसे एनिमल्स या ऐसे ह्यूमंस ये डिजीज को ट्रांसफर करने का बायस भी बनते हैं। अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो कन्वेंशनल मेथड्स जो हैं जो रूटीन में यूज होते हैं उनमें मोस्टली सेरोलॉजी आती है, सेरोलॉजिकल मेथड्स हैं जैसे कि रोज बंगाल टेस्ट है, ये एक बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये डिजीज को जहाँ पे खासतौर पर इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी कम होती है,
तो ये इसके साथ ये भी डिपेंड करता है कि इन टेस्ट को हम किस कंडीशन में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिजीज कहीं पे एंडेमिक है, जैसे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ डिजीज एंडेमिक है, तो यहाँ हमें जो टेस्ट रिक्वायर्ड होगा वो हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव केसेस में से हमने सेंसिटिविटी जब इंक्रीज करेंगे तो चांसेस हैं कि हम किसी को मिस ना कर जाएं। तो वो वाली इन्वायरमेंट जहाँ पे ये डिजीज को एरेडिकेट किया गया है, तो वहाँ पे हमें स्पेसिफिक टेस्ट ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं कि हम कहीं से, अगर खुदा न खास्ता फॉर एग्जांपल अगर एक टेस्ट ज्यादा सेंसिटिव है लेकिन स्पेसिफिक कम है, तो उसमें चांसेस हैं कि वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक ज्यादा होगा तो वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट उसके कम आएंगे। तो एंडेमिक सिचुएशन में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट अगर आ भी जाए तो उसकी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पे ये डिजीज प्रेजेंट है। तो अगर वो कोई एक आधा टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आ भी जाता है इसकी वजह से, तो क्योंकि हम उस फार्म को स्क्रीन कर रहे होते हैं, तो अगर उसमें मल्टीपल एनिमल्स पॉजिटिव आते हैं तो इट मींस द डिजीज इज प्रेजेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग द सेंसिटिव टेस्ट। और सेंसिटिव टेस्ट हमेशा जो है ना वो प्रेफर किए जाते हैं जहाँ पे डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, एंडेमिक होती है। फिर इसकी बेस पे है, और ये भी रिकमेंड किया जाता है कभी भी आप सिंगल टेस्ट को यूज ना करें। देर मस्ट बी देर आर रिकमेंडेशन दैट फर्स्ट यूज द सेंसिटिव टेस्ट देन फॉलोड बाय स्पेसिफिक टेस्ट। जैसे कि कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, ये लेस सेंसिटिव होता है बट दिस इज मोर स्पेसिफिक। इस तरह एलाइजा है, इसकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है और इसकी स्पेसिफिसिटी भी ज्यादा होती है। लेकिन एलाइजा को हम लेबोरेटरी के अलावा यूज नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल लैब रिक्वायर होती है, क्योंकि उसमें हमें इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए जो एलाइजा रिजल्ट को रीड करे। इस तरह आइसोलेशन है कि अगर हम बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं किसी मटेरियल से, फॉर एग्जांपल अगर एक एनिमल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनिमल से हम सैंपल लेते हैं और अगर उसमें से हम बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसका सैंपल अबॉर्टेड मटेरियल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, पोस्टमार्टल टिश्यू हो सकती है। अगर फीटस की बात करें, जो अबॉर्टेड फीटस है, तो उसकी एबोमेजल कंटेंट हो सकती हैं। तो इसमें से अगर बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है और हम कर सकते हैं आइसोलेट, तो ये एक अश्योरिटी होती है कि दिस एनिमल इज 100% इन्फेक्टेड विद द ब्रूसेला। ये काम थोड़ा सा लेबोरियस होता है, टाइम टेकिंग होता है, और इसमें चांसेस होते हैं कि आप जो लेबोरेटरी वर्कर है उसको भी डिजीज हो सकती है। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि डिजीज को सीरोलॉजिकल मेथड को यूज करते हुए और मॉलिक्यूलर मेथड्स को यूज करते हुए आइडेंटिफाई किया जाए। जो कि सीरोलॉजिकल मेथड मोस्टली सेंसिटिव होते हैं, मॉलिक्यूलर मेथड जो है ना वो सेंसिटिव भी होते हैं और वो स्पेसिफिक भी होते हैं। और अगर आइडेंटिफिकेशन और टाइपिंग की बात करें तो इसके लिए हम सिलेक्टिव मीडिया यूज कर सकते हैं। ब्रूसेला सिलेक्टिव मीडिया आता है जिसके ऊपर सिर्फ ब्रूसेला ग्रो करेगा, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। इसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी ग्रोथ को बेटर करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ती है। और इसकी अगर डिफ्रेंसिएशन करनी है तो हम उसमें डिफरेंट डाइज को यूज करते हैं। फिर बायोकेमिकल टेस्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन है, यूरियस टेस्ट है, कैटलिस्ट टेस्ट है, ऑक्सीडेज टेस्ट है। इस तो इस तरह के हम टेस्ट को परफॉर्म करके इसकी फर्दर डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। फेज टाइपिंग आ जाती है इसमें। फिर एग्लूटिनेशन विद मोनोस्पेसिफिक सीरा है, जैसे ए, एम और आर सीरा होते हैं, ये डिफरेंट एंटीजन के अगेंस्ट रेज किए होते हैं। फिर इसमें मॉलिक्यूलर एसिड आ जाते हैं, जैसे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, और आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो कि जीनोटाइपिंग में यूज होती है, जैसे कि एमएलवी और होल जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। अगर मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें कन्वेंशनल पीसीआर भी आता है, उसमें रियल टाइम पीसीआर भी आता है। कन्वेंशनल बेसिकली यूज किया जाता है जहाँ पे डीएनए की क्वांटिटी ज्यादा हो सैंपल के अंदर, क्योंकि जो अगर लेस डीएनए होगा तो वो कन्वेंशनल पीसीआर उसको एम्पलीफाई नहीं कर सकता, उसमें चांसेस होते हैं कि एम्पलीफिकेशन प्रॉपर ना हो। लेकिन रियल टाइम पीसीआर इवन नैनोग्राम्स डीएनए हो या पिकोग्राम्स के अंदर डीएनए हो पर माइक्रोलीटर, उसको भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन कन्वेंशनल पीसीआर की बेस पे हम फर्दर इसमें एसेज आते हैं, जैसे एमोस पीसीआर है, लेडर पीसीआर है।
तो ये फर्दर उसकी जो स्पीशीज हैं उसको डिफरेंशिएट भी करता है, और स्पीशीज के अंदर जो उसकी डिफरेंट बायोवार्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, उनको भी फर्दर डिफरेंशिएट करता है। जैसे अमोस पीसीआर है, अमोस मींस अबॉर्टस, मेलिटेंसिस, ओवस एंड स्विस। तो ये 4 ब्रूसेला स्पीशीज को एट अ वन टाइम ये आइडेंटिफाई कर सकता है, और उनके जो आप कह सकते हैं बायोवार्स हैं उनको भी ये डिफरेंशिएट कर सकता है। सिमिलरली जो लैडर पीसीआर है, ये जो बाकी स्पीशीज हैं जैसे ब्रूसेला स्विस है, कैनस है, न्यूटोमी है, ब्रूसेला जो मेलिटेंसिस है, और फिर वैक्सीनेशन स्ट्रेन्स आ जाती हैं जैसे ब्रूसेला अबॉर्टिस की RB51 है, ब्रूसेला मेलिटेंसिस की रेव1 स्ट्रेन है, ये वैक्सीन स्ट्रेन है, और ब्रूसेला अबॉर्टिस S19 स्ट्रेन है। तो ये ब्रूसेला की जो वैक्सीनल स्ट्रेन है, वो सम टाइम ऐसे होता है कि ये ब्रूसेला की जो वैक्सीन है ये भी इन्फेक्शन काज करती है। तो अगर तो वैक्सीन से इन्फेक्शन हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, या नेचुरल इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो हम लैडर पीसीआर को यूज करते हैं, जो कि डिफरेंशिएट कर देता है कि आइदर दिस इन्फेक्शन ड्यू टू वैक्सीन और ड्यू टू नेचुरल इन्फेक्शन। फर्दर बात की जाए तो जो करंट मेथोडोलॉजी है मॉडर्न वर्ल्ड में, इनका फ्यूचर is possible that this technology will also come to Pakistan. उसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसकी बेस पे जो है ना वो हम अब जीनोटाइपिंग करते हैं, बैक्टीरिया की मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन होती है, और ये टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि जिसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है, जो कि डेप्थ में स्टडी परफॉर्म करती हैं, और इसमें चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं कि आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन की जा सकती हैं। आप कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करती हैं, और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रुपिंग करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के साथ, जिसमें MLVA16 आती हैं, जिसको हम मल्टी लोकस वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स एनालिसिस कहते हैं। फिर कोर जीनोम मल्टी लोकस सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है, टाइपिंग है सॉरी, और फिर स्निप है जिसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये कोर जीनोम बेसिकली ये जो जीन्स होते हैं उस पूरे जीनोम के अंदर, उस जीन्स को की बेस के ऊपर एनालिसिस करती है कि ब्रूसेला मेलिटेंसिस फॉर एग्जांपल 200 जीन्स हैं, और वो जीन्स फर्दर उसका जो सीक्वेंस है जीन का वो वेरी कर सकता है ब्रूसेला अबॉर्टिस से। तो इतनी डेप्थ में जाके एक से दूसरे के साथ इसको डिफरेंशिएशन करी जाती है। इवन विद इन द सेम स्पीशी लाइक ब्रूसेला मेलिटेंसिस देयर आर डिफरेंट बायोवार्स, उसमें भी न्यूक्लियोटाइड चेंज होगी, तो उसमें भी ये डिफरेंशिएशन करती है। एंड इवन के विद इन द सेम स्ट्रेन ये उसको डिफरेंशिएट करती है कि आइदर ये स्ट्रेन जो है ये पाकिस्तान में जो प्रेजेंट है ये स्ट्रेन किसी और कंट्री में भी है, या ये स्ट्रेन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की है। तो इन मेथोडोलॉजी को यूज करके हम डीप एनालिसिस कर सकते हैं ब्रूसेला जीनोम का, और उसकी बेस पे हम फर्दर जो एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक अगर जैसे एग्जांपल दूं कि बहुत सारी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी हैं जैसे कि इल्यूमिना माइसैक सिस्टम है, इस तरह पायरो सीक्वेंसिंग है, अप्लाइड बायोसिस्टम्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है, ऑक्सफोर्ड सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है, नैनोपोर सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है। तो देयर आर लॉट ऑफ सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज करंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। अगर हम इल्यूमिना की बात करें तो ऑलमोस्ट सबके अंदर जो प्रोसेस है वो सेम होता है, ओनली the difference is the efficiency, accuracy, and the time taken for the result appearance। ये चीजें वेरी करती हैं, अदरवाइज सब में हमने डीएनए को आइसोलेट करना होता है, लाइब्रेरी को प्रिपेयर करना होता है, सीक्वेंसिंग होती है मशीन के थ्रू, और देन उस डाटा को एनालाइज किया जाता है। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो जो एप्लीकेशन है होल जीनोम सीक्वेंसिंग की तो काफी ज्यादा है कि हम आउटब्रेक मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें डायग्नोसिस है इन्फेक्शन डिजीज की, फिर ये डिटरमिन किया जाता है कि कौन कौन सी जूनोटिक इन्फेक्शन है, ये ह्यूमन से एनिमल को ट्रांसफर हो रही हैं या एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसफर हो रही हैं, या कहीं पे डिजीज की आउटब्रेक आई है तो वो वाला स्ट्रेन या कहीं वैक्सीन की वजह से तो नहीं है,
नेचुरल इन्फेक्शन है या वैक्सीन की वजह से है, तो इस तरह की चीज़ों को हम इससे जो है ना वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है डिजीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में और डिजीज को कंट्रोल करने में। थैंक यू सो मच। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो काइंडली इनबॉक्स कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को, फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे सकें। थैंक यू सो मच।